Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for joining. Let's continue the lesson. Equations of motion start की थी हमने और आज इंशाल्लाह conclude करेंगे. We're on question number 7. So this is a freight train. A freight train 1/4 kilometer long takes 20 seconds to pass a signal. Okay. So we have a signal or a train passes this signal. And this train is 1/4 kilometer long. And it takes 20 seconds for it to pass the signal completely. मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में it takes 20 seconds. The train is decelerating at a constant rate, and by the time the rear truck has passed the signal, it is moving 10 km per hour slower than it was when the front of the train passed the signal. That means कि इस केस में when the front of the train passes the signal, ये ट्रेन का फ्रंट है. इस वक्त if the speed is x kilometer per hour, then the speed is 10 less than this at the time when the rear end passes the signal. So u is going to be x and v is going to be x minus 10. Find the deceleration in kilometer per hour. Deceleration की value find करनी है. That means हम पहले acceleration find करेंगे. So we need A. We have U, which is x. We have T, which is 20 seconds. But unit conflict है, उन्होंने कहा है किलोमीटर पर आवर में चाहिए deceleration. So हम 20 divided by 60 करेंगे. 20 divided by 62 times. So that seconds get converted into hours. So 20 divided by 3600 is going to be 1/180 hours. This is kilometer per hour. V is going to be x minus 10 kilometer per hour. Okay. So U, V, T और A को use करना है. S भी पता है in fact. S is 0.25 kilometers. अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए और हमारे पास u का एक्सप्रेशन है, v का एक्सप्रेशन है, t है, s है. कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिससे a आ जाए? v equals to u plus at. हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. v is equals to u plus at. v is x minus 10, u is x, a फाइंड करना है और t है 1/180. So x and x gets cancelled and we get minus 1800 is equals to acceleration. So acceleration is minus 1800. इसका यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इस केस में. So then the deceleration is going to be 1800 kilometer per hour square. Deceleration acceleration ही होती है बट हम उसमें साइन नहीं लिखते. Deceleration means negative acceleration. So negative negative कट जाता है. So when they will ask for deceleration, आप acceleration का खाली magnitude लिखो. Okay. So first part is done. Deceleration हमने find कर दिए. And the speed at which the train is moving when the rear truck has just passed the signal. That means आप x minus 10 find करना है. When the rear part of the truck passes through the signal. So x minus 10 के लिए आप x find कर सकते हो और उसमें से 10 minus कर सकते हो.
सो हाउ डू वी फाइंड x? अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है. a is minus 1800. किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ओके, तो अब हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं जिससे हमारे पास x आ जाए? या u आ जाए. x is u. S equals to ut plus half at square. लेट्स सी. s है हमारे पास, ux हो जाएगा, t है प्लस हाफ at स्क्वायर. हाँ सही है, इससे आ जाएगा. ओके लेट्स ट्राई. s is 0.25. क्योंकि किलोमीटर पर आवर मेंशन्ड है क्वेश्चन में, इसीलिए हमने अपने डिस्टेंस को किलोमीटर में ही रखा है, वरना हम मीटर्स में चेंज करते. ओके, u is x, t in hours is 1/180 plus half, a is minus 1800, t square would be 1/180 squared. इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकाल के बताएं. और मेरे जहन में ये आ रहा था वैसे ये फॉर्मूला, s is equals to half u plus v times t. इससे भी सेम आंसर आना चाहिए. 0.25 is equals to half x plus x minus 10 और t है 1/180. इससे भी x आ जाएगा. सो आई एम वेटिंग कि आप लोग x निकाल के बताओ अब मुझे. Mm, 50 kilometers per hour. x तो 50 नहीं आएगा. अच्छा अच्छा अच्छा, X 50 आएगा. सही है सही है, x 50 आएगा क्योंकि यहाँ आंसर 40 लिखा हुआ है. ओके ठीक है, 50 ही आना चाहिए. सॉरी. ओके, x आ गया 50. और हमें फाइंड करनी है स्पीड एट विच द ट्रेन इज मूविंग व्हेन द रेयर ट्रक हैज जस्ट पास द सिग्नल. दैट मीन्स हमने x minus 10 फाइंड करना. सो x minus 10 would be 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर्ड. नहीं सॉरी, पर आवर क्योंकि स्पीड है. ये आ गया आंसर. बाकियों का भी 40 आ गया, आई होप. इसको सॉल्व करके या इसको सॉल्व करके 50 आना चाहिए और फिर 50 minus 10 40 आना चाहिए. ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन 8. All right, if not, then we start question 8. Okay. A cheetah is pursuing an impala. Impala एक deer की species होती है. Okay. A cheetah is pursuing an impala. The impala is running in a straight line at a constant speed of 16 meters per second. Okay. So एक cheetah है, उसको हम एक dot और C से represent कर देते हैं. और उसके आगे कहीं एक इम्पाला है, उसको हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं. The impala is running in a straight line. So impala यहाँ मूव कर रहा है कहीं in a straight line. ठीक है.
at a constant speed of 16 meters per second. So इम्पाला का डेटा इधर लिखते हैं. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है 16 मीटर्स पर सेकेंड. कांस्टेंट स्पीड पे हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, which is s is equals to vt. Distance is equals to speed into time. So distance is equals to 16t. इम्पाला का जो डिस्टेंस है वो होगा 16 टाइम्स t. ठीक है, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इम्पाला इन टाइम t. So si would be 16t. फिर कहा गया है that cheetah is 10 meters behind the impala. So ये डिस्टेंस बताया गया है, ये 10 है. इनिशियली उनके बीच में 10 मीटर्स का डिस्टेंस है. The cheetah is 10 meters behind the impala running at 20 meters per second. इसकी स्पीड ज्यादा है, but it's tiring so that it is decelerating at 1 meters per second square. अच्छा जी, अब चीता की क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसकी इनिशियल स्पीड 20 है. उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड पहले 20 है और वो डीसेलरेट कर रहा है एट 1 मीटर्स पर सेकेंड. दैट मीन्स एक्सेलरेशन है -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा जी, तो इसके अगर हम डिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालें, डिस्टेंस कवर्ड बाय चीता, तो हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला ut, क्योंकि u पता है, प्लस हाफ at स्क्वायर. सो ये हो गया 20t प्लस हाफ टाइम्स a, तो a -1 है तो फिर -हाफ t स्क्वायर. डिस्टेंस कवर्ड बाय चीता इन टाइम t इज दिस. और चीता का डिस्टेंस कहीं ये होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है चीता. सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय चीता इन टाइम t. ठीक है, एक इम्पाला है आगे, एक चीता है पीछे. इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर्स है, जिसको हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. इम्पाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसीलिए उसके में s इज इक्वल्स टू vt का फॉर्मूला यूज किया गया है, विच इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड. सो इट्स डिस्टेंस इज 16 टाइम्स t. और जो चीता है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड पता है और एक कांस्टेंट डिसेलरेशन पता है. तो उसके भी डिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी 20t माइनस हाफ t स्क्वायर. अब क्वेश्चन में कहा यह है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द गैप बिटवीन द चीता एंड इम्पाला t सेकेंड्स लेटर. t सेकेंड्स में हमने कह दिया है इम्पाला इधर आ गया, चीता इधर आ गया, तो फिर इनके बीच का गैप ये है, इधर से लेकर इधर तक. दिस इज द गैप जिसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ t. So the green line represents the gap between the new position of impala and the new position of cheetah t minutes later, या t seconds later, in fact t seconds later. अब एक इक्वेशन बनानी है जिसमें SC भी आए, 10 भी आए जो रेड में नजर आ रहा है, SI भी आए और गैप भी आए. तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी जिसमें SC का भी एक्सप्रेशन यूज हो रहा हो, 10 भी यूज हो रहा हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय इम्पाला भी हो और गैप भी हो. मैम ये 16t प्लस 10 माइनस 20t माइनस हाफ t स्क्वायर होगा. ठीक है, अभी चेक करते हैं, रुको, मुझे फाइनल आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे शुरू की इक्वेशन से देखते हैं कि आपका वाला आ रहा है या नहीं. देखो, अगर हम ये करें कि सेकेंड, लेट मी चूज अ कलर, ये पिंक यूज कर लेते हैं. अच्छा,
अगर मैं एस सी और गैप को ऐड करूं, ठीक है, तो वो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना अगर दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें। तो आई एम गोइंग टू से कि एस सी प्लस गैप distance covered by cheetah plus the gap between the two is equals to, अब I'm going to add 10 and distance covered by impala, ये भी उतना ही distance है, is equals to 10 plus distance covered by impala। इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। What I did is कि पहले मैंने कहा है कि अगर if I look at the figure that I've made, तो SC डिस्टेंस कवर्ड बाय चीता इन टाइम t और ये जो गैप है इस डिस्टेंस को ऐड करें और 10 और डिस्टेंस कवर्ड बाय इम्पाला ऐड करें तो सेम ही लेंथ बन रही, सेम डिस्टेंस बन रहा है। तो हमने इक्वेशन बना ली, डिस्टेंस कवर्ड बाय चीता प्लस गैप इज इक्वल्स टू 10 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय इम्पाला। अब गैप को बनाते हैं सब्जेक्ट is equals to 10 plus SI minus SC, which would be 10 plus 16T minus 20T minus half T square। इसको ब्रैकेट में करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ये आ जाएगा 10 plus 16T minus 20T plus half T squared, which becomes 10 minus 4T plus half T squared। यही आंसर आया था। आई एम सॉरी आई couldn't टेल के कौन बोल रहा था, रोहान शायद बोल रहा था। जी मैम, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 10 minus 4T plus half T square, गैप का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ T। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। Ma'am, जी, how did you interpret it from the statement of the question? आप थोड़ा दोबारा समझा सकते हैं? क्वेश्चन में कहा है कि गैप क्या है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये इस फिगर से इंटरप्रेट किया था, सारी मेरी वर्किंग इस फिगर के अराउंड हुई है और इस फिगर को देख के ही मैंने इक्वेशन बनाई है। सो यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन द फिगर अगेन परीक्षा? हाँ जी मैम, थोड़ा सा। ठीक है परीक्षा, इसको एंड में समझा देती हूँ, ठीक है। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन, यू स्टे बैक, डोंट लीव द क्लास व्हेन आई टेल अदर्स टू लीव, ठीक है। तो हम उस वक्त इस फिगर को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, गैप का ये एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द गैप बिटवीन द चीता एंड द इम्पाला t सेकेंड्स लेटर, ये कर लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं विल द इम्पाला गेट अवे। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, इम्पाला कब पकड़ा जाएगा, जब ये गैप क्या होगा, 0 होगा। हाँ एग्जैक्टली अगर ये गैप 0 हो सकता है तो फिर दैट मीन्स दैट द इम्पाला विल नॉट गेट अवे, इल गेट कॉट। और अगर ये गैप 0 नहीं हो सकता तो दैट मीन्स दैट द इम्पाला गॉट अवे। सो हम चेक करने लगे हैं फॉर पार्ट बी, या इधर तो नहीं है पार्ट बी, बट विल द इम्पाला विल गेट अवे या इम्पाला विल गेट कॉट if gap is equals to 0। तो अब हम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये 0 हो सकती है। दैट मीन्स हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सॉल्व हो गया तो हमारे पास टाइम की 2 वैल्यूज निकल आएंगी, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम पे गैप 0 हो जाता है और इम्पाला गेट्स कॉट। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकती तो इसका मतलब है कि गैप कभी 0 हो ही नहीं सकता। सो दैट मीन्स दैट इम्पाला विल गेट अवे। सो A 0.5 है, B -4 है, C 10 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
minus b plus minus b squared minus 4ac upon 2a. यहीं से मुझे नजर आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव हो रहा है. 16 minus 4 into 5 minus 4 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट. तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकती. सो इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 since discriminant is less than 0, Impala will get away. Gap cannot be 0. Hence, Impala gets away. अच्छा, क्वेश्चन ना बेहतर तब समझ आता है व्हेन आफ्टर द क्लास यू रीडू दोज क्वेश्चंस अगेन. वैसे तो मैंने बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए मैसेज किया था कि उनको क्लास के बाद दोबारा से वो क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी, बाकी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को भी, जो क्वेश्चन क्लास में अच्छा नहीं समझ आता उसको डेफिनेटली दोबारा करना चाहिए. वैसे तो आइडियली यू शुड बी रीडूइंग एवरी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे कराने से और खुद करने में बहुत फ़र्क है. So it is recommended for everybody in the class कि ये question दोबारा करना without looking at the solution because it's a challenging question. और इस तरह के मैंने recently 2 questions देखे हैं जिसमें आपने gap की equation खुद बनानी होती है. So although it's a question from the book, but it is an important question. Okay. Question number 9 and 10. They are multi-stage questions. Multi-stage का मतलब है कि simultaneous equations बनती हैं. चलिए, they're very easy, a lot easier than the last 2 questions. So let's do that. Okay. Question 9 is, a cyclist is freewheeling down a long straight line. Let's draw a long straight line. The times between passing successive kilometer posts are 100 seconds and 80 seconds. तो कहीं 2 posts आती हैं बीच में. Let's say यहाँ पे कोई एक पोस्ट आती है, फिर सेकंड पोस्ट आती है, और किलोमीटर पोस्ट का मतलब है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. सो दिस इज 1 किलोमीटर के बाद एक पोस्ट आती है, फिर 1 किलोमीटर के बाद एक पोस्ट आती है. द टाइम बिटवीन पासिंग सक्सेसिव किलोमीटर पोस्ट आर 100 सेकेंड्स एंड 80 सेकेंड्स. इसको उसने 100 सेकेंड्स में पास किया, इसको इसने 80 सेकेंड्स में पास किया. ठीक है, इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और इस पार्ट का भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है. ये बन गया मल्टी स्टेज प्रॉब्लम. 2 स्टेजेस हैं, दोनों स्टेजेस का अलग अलग डेटा हमारे पास है. Assuming his acceleration is constant. इधर भी जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, सेकेंड स्टेज में भी वही एक्सेलरेशन की वैल्यू है. फाइंड दिस एक्सेलरेशन. चलिए, फर्स्ट स्टेज है हमारे पास और एक सेकेंड स्टेज है और एक कंबाइंड दोनों स्टेजेस हैं. लेट मी ड्रॉ ऑल ऑफ देम. एक फर्स्ट स्टेज है, उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, उसका टाइम 100 सेकेंड्स है और उसमें एक्सेलरेशन a है. फिर सेकेंड स्टेज है, टाइम 80, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और एक्सेलरेशन इज a. So this is seconds and that's kilometer. Assuming his acceleration is constant, find this acceleration. अच्छा, एक combined stage है.
इसमें टाइम इज 180 seconds, distance is 2 kilometers, and acceleration is still going to be a. Okay, find this acceleration. अच्छा जी, अब यहाँ पे इनिशियली उसकी इनिशियल स्पीड u होगी और यहाँ पे उसकी कोई फाइनल स्पीड होगी v. तो फिर जो थर्ड स्टेज मैंने बनाई है उसकी भी इनिशियल स्पीड यहाँ पे u होगी और यहाँ पे फाइनल स्पीड v होगी. Now what I'm going to do is I'm going to use this stage and this stage और इससे 2 equations बनाएंगे, उसमें 2 unknown होंगे और simultaneously solve करके उन दोनों unknown की value आ जाएगी. अब इन दोनों stages में u common है, दोनों का u same है, ठीक है. इसका v तो कुछ और होगा, वो हमें नहीं पता क्या है v, ठीक है. So if I choose to use the first stage and the combined stage, तो मुझे एक ऐसी simultaneous equation बनानी है जिसमें u भी आए और a भी आए और s भी आए और t भी आए. So कौन सी equation of motion use होगी जिसमें u, s, t, a use होगा? S is equals to ut plus half at square. ठीक है, correct. So since I am going to use u, क्योंकि मैंने first और full stage use किए, combined stage use किया, तो फिर मुझे u ही use करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का u common है, इन दोनों के v same नहीं है. So I'm going to use s is equals to ut plus half at square for both these marked stages. s को हम लेंगे 1000 meters क्योंकि कल हमने देखा था कि SI यूनिट यूज होता है, so that's going to be in kilometers, sorry in meters. तो हम 1000 meters करेंगे. 1000 is equals to 100 u plus half a 100 squared. So 1000 is equals to 100 u plus, ये क्या बन जाएगा, 5000. अच्छा जी, दोनों साइड्स पे 100 डिवाइड कर देते हैं, तो 10 इज इक्वल्स टू u. t किधर गया मेरा? अच्छा नहीं, t नहीं है, a किधर गया? यहाँ पे a आना चाहिए. ओके, सो u प्लस 50a, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट स्टेज की इक्वेशन बन गई. अब कंबाइंड स्टेज की इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं. उसमें वही s हो गया 2000 मीटर्स इजी 2000 इक्वल्स, यहाँ यूनिट नहीं लिखते, ओके, इज इक्वल्स टू ut. सो u तो u ही रहेगा, t इसका 180 सेकेंड्स है, सो 180 u प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो यहाँ आ गया 2000 इक्वल्स 180 u प्लस 180 squared into half, यार 16200 a. इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए? एक तो ये जीरोस खत्म हो गए, 10 से कर दिया, उसके बाद हमने 2 से भी कर दिया अगर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल्स टू 9u प्लस 810 a.
ये बन रही है इक्वेशन 2। इन दोनों को मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए की भी वैल्यू निकाल के दें और यू की भी वैल्यू निकाल के दें। वैसे खैर उन्होंने खाली एक्सेलरेशन पूछा है, तो यू निकालने के कोई मार्क्स नहीं होंगे। अक्सर पार्ट बी में यू यूज़ हो रहा होता है, इसमें पार्ट बी है ही नहीं, सो यू निकालना ज़रूरी नहीं है। बट मुझे इक्वेशन ए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके ए निकाल के बताएं। One over 36. 1/36 ही आंसर लिखा हुआ है। बाकी भी बताएं। 1/36 आ रहा है साइमल्टेनियसली? जी मैम, मैम यही आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है, गुड। सो 1/36 आंसर है। अगर कहा जाएगा कि एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दें तो 1/36 ही देना है, और अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर यू कैन गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल। वो बन रहा है 0.0278, लेकिन दिस इज अ गुड इनफ आंसर 1/36। अच्छा, वेरी ऑफन लाइक आई सेड, यू को वो अगले पार्ट में यूज करेंगे तो फिर हम यू भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरी होगा, as far as I remember. Let's see. Okay, let's do question 10. Similar question है, but it has 2 parts. Okay. अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में नहीं रही डिस्कस करना कि मैंने तो फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज यूज़ किए, बट कुछ स्टूडेंट्स यूँ भी कर सकते हैं कि वो सेकंड स्टेज और ये फुल स्टेज यूज़ कर लेते हैं, इसको और इसको यूज़ कर लेते, लेकिन फिर उनको v को यूज़ करना पड़ता, u को ना फिर वो यूज़ करते। तो फिर वो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं जिसमें s, t, a और v आ रहा हो, विच वुड बी s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at², क्योंकि सेकेंड स्टेज का ये फाइनल स्पीड और फुल स्टेज की फाइनल स्पीड वो सेम होती, यूज़ ना इनकी सेम होती, क्योंकि इसका u हमें नहीं पता क्या है, वो सेम नहीं होगा। ठीक है, सो यू कुड हैव यूज्ड सेकेंड स्टेज एंड द फुल स्टेज, बट फिर v इस्तेमाल होता, u नहीं यूज होता। ओके, बैक टू क्वेश्चन 10. Okay. A train is slowing down with a constant deceleration. It passes a signal at A, and after successive intervals of 40 seconds, it passes points B and C. So एक मल्टी स्टेज बताई हुई है जिसमें A, B and C 3 पॉइंट्स हैं, बना लेते हैं। We have A और A B 1800 का हुआ है तो थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पे B और फिर आगे C. A B 1800 मीटर्स है, सो फर्स्ट स्टेज का डिस्टेंस 1800, second stage का distance 1400. S equals this. After successive intervals of 40 seconds, that means first stage का भी time 40 seconds है, second stage का भी time 40 seconds है. I'm rereading the question. A train is slowing down with the constant deceleration. अच्छा, deceleration constant है throughout, तो इन दोनों stages में जो भी acceleration की value है वो same रहेगी, और जब हम complete stage लेंगे, full stage लेंगे, उसमें भी acceleration वही होगी,
जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में. So A is constant throughout this question. It passes a signal at A, and after successive intervals of 40 seconds, it passes points B and C, where AB is 18 and BC 1800 and BC is 1400 meters. Part A is how fast is the train moving when it passes through A. That means उन्होंने U पूछा है. U पूछा है तो हम फिर definitely first stage लेंगे और combined stage लेंगे. कंबाइंड स्टेज का डेटा लिख लेते हैं. एक तो हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेलरेशन वही रहेगी जो बाकी स्टेजेस में है. डिस्टेंस हो जाएगा कंबाइंड डिस्टेंस 0 0 2 3 3200 और टाइम हो जाएगा 80 सेकेंड्स. यू जो होगा वो सेम होगा एज यू ऑफ द फर्स्ट स्टेज. तो अब ज़रूरी है हम फर्स्ट स्टेज और कंबाइंड स्टेज ही यूज़ करें. हम सेकंड स्टेज नहीं यूज़ कर सकते. अगर वो फाइनल स्पीड पूछते तो फिर हम सेकंड स्टेज और कंबाइंड स्टेज यूज़ कर लेते. जी, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और वही लगेगा S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से u निकाल लेंगे और क्योंकि इसमें पार्ट b है तो फिर a भी निकाल लेंगे क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर यूज होगा. सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. 1800 is equals to u times t, so 40u, sorry, u times t, so 40u plus half a 40 squared. This would be 1800 equals 40u plus 40 squared times half होता है 800. इसको हम जीरो से पहले ख़त्म कर देते हैं. 0 0 0 दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास अब हम 2 से डिवाइड कर लें अगर. सो वी गेट 2u प्लस 40 और 18 बल्कि दोबारा से भी हो जाएगा 2 से डिवाइड. यहाँ पे a है, सो वी हैव 45 इक्वल्स u प्लस 20a. ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है. अब कंबाइंड स्टेज को यूज करके इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं. 3200 इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So 3200 is equals to 80u plus 80 squared times 0.5. 3200 a. तो अगर हम 80 से डिवाइड कर लें हमारे पास आ रहा है 40 is equals to u plus 40a. इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व करके मुझे u भी निकाल के बताएं और a भी निकाल के. मैम जी मैम ये हम माइनस ए नहीं लेंगे सिंस ट्रेन डिसेलेरेट हो रही है. ट्रेन डिसेलरेट हो रही है. लेट मी मैम a की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगी. ए नेगेटिव ही आएगा. आपने इक्वेशंस को नहीं चेंज करना होता, आपका आंसर नेगेटिव आता है. अगर आंसर नहीं नेगेटिव आएगा दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक. दैट वुड मीन कुछ गलत किया क्वेश्चन में.
ठीक है, अगर हमें वैल्यू दी होती एक्सेलरेशन की और मेंशन किया होता कि डीसेलरेट हो रहा है, तो फिर हम उसको डेफिनेटली नेगेटिव यूज करते, बट हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं चेंज करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं करेंगे। मैम इसके आंसर क्या आ रहे हैं? u आना चाहिए 50 और a, -1/4। हाँ बिल्कुल मैम मेरी भी 50, यही वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है गुड, 50 और -1/4। ठीक है, कैलकुलेटर से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है ना, उसको प्लीज बस चेकिंग के लिए रखना, सॉल्व मत उससे कर देना, ये ना हो कि वर्किंग ना नजर आए, बिकॉज मेथड मार्क नहीं मिलेगा, फिर एक्यूरेसी मार्क नहीं मिलेगा। सो इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये आ गया मीटर्स पर सेकंड और ये आ गया मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। अच्छा जी, पार्ट ए इज डन, आई होप बाकियों का भी आ गया। पार्ट बी देखते हैं। हाउ फार फ्रॉम ए डज इट कम टू स्टॉप? ओके, सो अब कहीं पे ये स्पीड 0 होगी, और वो कब 0 होगी? तो अब हम v इज इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, टाइम ही फाइंड करना है। हाउ फार, अच्छा नहीं, टाइम नहीं फाइंड करना, s फाइंड करना। हाउ फार फ्रॉम a डज इट कम टू स्टॉप? सो s फाइंड करना है जब वो रुक जाए ट्रेन। और हम कौन सी वैल्यूज यूज कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा? ए बिल्कुल सही यूज कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ए तो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा, -1/4। और क्या यूज कर सकते हैं? U. हाँ, यू यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि जब भी वो ट्रेन ए से गुजरी है, सो दैट वाज एट 50 मीटर्स पर सेकेंड, सो यू यूज होगा 50। टाइम नहीं यूज हो सकता इनमें से कोई भी, क्योंकि हमें नहीं पता कब रुक रही है ट्रेन। सो v, u, a और s को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, कौन सी यूज करेंगे? V square is equal to U square plus 2as. Good. v square equals u square plus 2as। अब देखो एक्सेलरेशन यूज करनी थी, इसी वजह से I made you guys find it. Although in part A they did not ask for the acceleration, लेकिन हमने फिर भी निकाल ली थी। 0 square is equals to 50 squared plus 2 times -1/4 times s। s बताएं क्या आता है? $5,000 meters. सही है बिल्कुल, 5000 meters। ओके, आई थिंक इधर लेसन एंड कर देते हैं, कल इंशाल्लाह वर्टिकल मोशन स्टार्ट करेंगे। If you have any questions, please stay back. Otherwise, you guys can go. Allah Hafiz, and thank you very much for joining. अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। Office. अब मैं वो क्वेश्चन एक दफ़ा फिर दोबारा खुद से ट्राई करूँगी, तो अगर मुझे नहीं समझ आता फिर मैं आपसे पूछ लूँगी। ठीक है फरीशा, ओके, अल्लाह हाफिज। अनफिस। मैम अगर आप क्वेश्चन 8 की जो आपने शुरू में जो आपने वो बनाया था एक फिगर, हाँ